welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Tadia. We have with us Kunal Chai, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, overall, this week you will have the Fed and Bank of Japan rate decisions ahead. And after that, next week, you have the RBI monetary policy also that is slated in this month. What's the sense that you pick up overall in terms of impact on the commodities market ahead of? Okay, now this is going to be a very crucial week for commodity because last week we've seen major selling across all commodities. So we've seen gold, silver, crude oil, all prices of all commodities have gone down quite sharply. So on Wednesday, like you said, there is a Fed meeting and the market consensus is there is going to be 75 basis point of interest rate hike in this meeting. And because of that, we are seeing a major volatility. Second thing, the China economic growth, even though they have lifted up the lockdown, is collapsing quite sharply. Europe and US both are witnessing record high electricity prices. So the consumer spending is going to remain muted. So amidst all of these, commodities cannot rally, first of all, broader call. There cannot be a major bullish call in commodities because the economic scenario have worsened significantly. So the broader call on commodities continues to be sell on rise for metals and oil. And I continue to believe that oil and metals are going to go down irrespective of whatever small short-term spike we witness. So ये हफ्ते में फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग वेडनेसडे को है जहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक आने वाला है वहां पे. So that will take US rate to 3.75. अगर 4% भी आता है तो 1% भी आता है इंटरेस्ट रेट हाइक और that will take US interest rate to 4%. तो मेरी राय में कोई इसका मेजर इम्पैक्ट क्योंकि ये होने वाला है सबको मालूम ही है. आज हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हर कमोडिटी आप देखेंगे, कॉटन, एग्री कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटी सभी के दाम गिर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होते जा रहा है. तो कमोडिटी में ब्रॉडर सेलिंग इसकी वजह से आ रहा है और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में ये कंटिन्यू रहने वाला है. तो मेटल्स और एनर्जी में ये कंटिन्यू रहने वाला है. सो नाउ दिस इज द ब्रॉडर कॉल फॉर कमोडिटीज एज अ होल. नाउ वी कैन गो टू इंडिविजुअल कमोडिटीज. Right. So, Kunal, overall, this is the broad perspective, as you just mentioned, that you've given us. Now, clearly, if you see in terms of the other commodities as well, in terms of gold and silver, what is your recommendation? Okay, so what I am expecting is gold, ये जो पूरा इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है उसकी मूवमेंट को पहले से कैप्चर फैक्टर कर रहा है. So gold is discounting this entire event of interest rate hike in US well in advance. So after the interest rate hike, there can be some short covering, but till then, I am telling everyone not to go aggressive long on gold and silver both. Wait for 1 or 2 days. Maybe बहुत घट जाता है. For example, gold becomes 48, 600, 700. Then yes, silver becomes again 54, 55. Then yes. So बहुत घट जाता है मीटिंग के पहले, then you should not wait for the meeting. अगर if it goes down marginally, अभी फिलहाल ट्रेड आपको 1-2 दिन में ट्रेडिंग करना है तो बहुत ज्यादा लॉन्ग मत कीजिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है. तो मेरी राय में अभी एग्रेसिवली आप लॉन्ग मत कीजिएगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में. Right. And Kunal, couple of questions on gold and silver itself. कि gold and silver ऊपर कितना जा सकता है वीक में? If US का स्पीक जो फेड का मीटिंग है उसके बाद जो स्पीच रहेगा that is going to be very important. अगर उसमें ऐसा कहते हैं कि इकोनॉमी खराब होगी तो हम फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो गोल्ड और सिल्वर फ्लेयर अप हो जाएगा. क्योंकि गोल्ड सिल्वर का तो फंडामेंटली बहुत ज्यादा बुलिश है. गोल्ड से ज्यादा अभी फिलहाल सिल्वर का फंडामेंटल, सिल्वर में मेजर डिमांड है बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस चल रही है. तो सोलर पैनल के जो सेगमेंट में सिल्वर की चाइना से बहुत रोबस्ट डिमांड है फिलहाल. तो ऐसे हालत में अगर कोई भी स्टेटमेंट फेड की ओर से आता है जो इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से एग्रेसिवली नहीं बढ़ेंगे तो गोल्ड सिल्वर बहुत जोर से शूटअप हो जाएगा, मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें. सो मेरी राय में मैं ये मीटिंग प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूँ. क्या कहेंगे? मेरा जो
अंडरस्टैंडिंग है, घटे में कोई पैनिक फॉल आता है कोई भी रीजन से, डॉलर इंडेक्स 111 हो जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, वो टाइम पे आप गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन बिल्ड कर दीजिएगा। अगर वो टाइम पे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड जैसे मैंने कहा 48,500 600 के आसपास आता है, तो या सिल्वर अराउंड 54,500 600, सो 1,500 का सिल्वर में करेक्शन अगर आता है उसके मीटिंग के पहले ही, देन इट्स अ ग्रेट बाय। गोल्ड भी मीटिंग के पहले अगर 500 600 रुपया घटता है, देन इट इज अ ग्रेट बाय। बट आप 2 दिन आपको ट्रेड करना है, 1 2 दिन में, तो मैं उछाले पे बेच के इंट्राडे में प्रॉफिट लेने का, दैट इज माय रिकमेंडेशन। Right. And Kunal, at 58,300 and 5700, is silver and gold a buy? 50 8,300 for silver and 5,700 for gold. 5,700, I am not understanding. Right now it is showing 49,300. Correct. No, for I'm assuming, because Chandresh Soni का मैसेज है, सर सिल्वर बाय कर सकते हैं 58,300 के लिए और गोल्ड 5700 के लिए। ये लेवल आते हैं वहां पे बाय कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं चंद्रेश जी कि उन्होंने ऑलरेडी बाय। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन। Okay, we'll wait for some clarity to come in. Apart from that, मेटल्स और ऑयल मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, बेच के काम कीजिए। कॉपर, एल्यूमिनियम में चाइना में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है, एल्यूमिनियम में भी कोई 1-2 रुपया बढ़ता है तो बेचना चाहिए। कॉपर 648 49 में बेचना चाहिए। जिंक अराउंड 270 280 81 के आसपास बेचना चाहिए। इसका एकदम सिंपल रीजन है, हालत खराब है वर्ल्ड में, ग्रोथ नहीं है, तो मेटल्स कैसे तेजी होने वाला है। चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहा है, पर ओपन अप करते कंस्ट्रक्शन रॉबस्ट थोड़ी हो जाने वाला है इमीडिएटली। सो मेटल सेल ऑन राइस की रणनीति मुझे ठीक लग रही है। राइट। एंड कुणाल, अनदर क्वेश्चन कमिंग इन कि 3,000 का टारगेट नहीं दिया गोल्ड में, लेकिन 3,000 का लॉस हो गया है। I think the person has bought and it's gone down. So any suggestion of how to cover it? देखो, आप फ्यूचर मार्केट में अगर जो पोजीशन बिल्ड कर रहे हो, अगर आपने 53,000 पे लिया है या 52,500 में लिया है, तो आज आपको 49,500 में 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है, समझिए। सो फ्यूचर मार्केट में अगर आपने एक लॉट लिया है, आपकी M2M कैपेसिटी है 3 लाख रुपए देने की, देन इट इज गुड। अदरवाइज फ्यूचर मार्केट में आप कोई बड़ा ये नहीं कर सकते हो, कोई बड़ा वेंचर नहीं कर सकते हो। फ्यूचर मार्केट में आपको लीवरेज को कंट्रोल करना है, लीवरेज को मैनेज करना है। सो अगर आपके पास 3 लाख रुपए तक का कुशन नहीं है और आपने लिया है, तो दैट इज नॉट राइट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म कॉल है, उसमें लीवरेज नहीं होता है। दिस इज फ्यूचर मार्केट। सो आपको आपका लॉस मैनेज करना है। सो आप अगर 3,000 रुपए तक देख ही नहीं सकते हो, तो आप उतना खड़ा ही नहीं दे सकते हो फ्यूचर मार्केट में। गोल्ड के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तेजी की ही है, क्योंकि ये पूरे विश्व में वॉर जैसी परिस्थितियां हो गई है। अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम हो रहा है यूएस में, जो ईटीएफ वाले हैं, ये ईटीएफ वाले अपने कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं। सो रफली यूएस ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में से 100 टन का रिडेम्पशन हो गया है। क्यों बेच रहे हैं ये ईटीएफ वाले? बिकॉज यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं। ब्याज दर बढ़ रहे हैं, तो ब्याज दर बढ़ने के कारण आज मैं गोल्ड से 7 से 8% मंथ ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, और मुझे यूएस की बैंक में ही 4% मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम removing my money from gold and keeping my money in the US banks. But मुझे क्यों तेजी लग रहा है गोल्ड में कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले फ्यूचर में 1 2 3 महीने में बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरा वर्ल्ड का बहुत खराब है। तो ये आज इंडिया में हम जो भाव देख रहे हैं 49,600 700, उसमें से 5% आप ड्यूटी का निकाल दो, तो आपको इफेक्टिवली 45,500 600 में गोल्ड मिल रहा है। सो दीज आर नॉट द लेवल्स टू डू पैनिक, क्योंकि वर्ल्ड में इतना पैसा प्रिंट हुआ है, और प्रिंट होने के बाद अभी पैसा धीरे धीरे सिस्टम में से आउट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट आ रहा है। बिटकॉइन नीचे जा रहा है, इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है, यूएस यूरोप सब रिस्की एसेट क्लास में करेक्शन आ रहा है, और साथ में गोल्ड भी घट रहा है। सो गोल्ड इज, हम लास्ट 3 साल से ट्रेंड दिख रहे हैं कि स्टॉक के साथ गोल्ड बढ़ता है, स्टॉक नीचे आता है तब गोल्ड, ग्लोबल स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, तब गोल्ड भी नीचे आता है।
So this is the pattern which is going on from last 3 years, but that doesn't mean gold के fundamental खराब है. ये timing wrong है. जो आपने ये जो 50 to 500 में लिया है, तो वो टाइम पे एक बार हमारे से एंट्री गलत हो गई है. सो आई थिंक आप M2M देख सकते हो तो खड़े रह सकते हैं, 2-3 महीना रोल ओवर कर सकते हो तो. और अगर आप नहीं देख सकते M2M, then you should not wait. Right. So that's the view coming in overall in terms of commodities market. I think in overall we've answered all the questions. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining in. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.